Let's start with question number 14 today. A simple pendulum of length 100 centimeter. So आपको pendulum का length दिया हुआ है. Let us say capital L. 100 centimeter मतलब 1 meter का length है. It performs SHM. Find the restoring force. So you're supposed to find out restoring force F acting on its bob of mass 50 gram. So mass of the bob is 50 gram, which is 15 10 power minus 3 मतलब 5 10 power minus 2 kilogram. When the displacement from mean position is 3 centimeter. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग. F इज इक्वल टू दैट वाज F इज इक्वल टू माइनस kx. तो अगर k फाइंड करना है हम लोगों को, बिकॉज फोर्स निकालना है तो x और k चाहिए, and you should know how to find out k. So there has to be a formula which relates L, M and K, क्योंकि हमको गिवन क्वांटिटीज में L, M और K दिया हुआ है और K फाइंड करना है, L और M दिया हुआ है. So how to find it out? How do we find this particular thing? Okay, तो basically F equal to minus K जो formula था, that was for a particle moving along a straight line performing SHM. यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम के केस में हम लोगों को ये याद होना चाहिए that restoring force was mgx by L. You should remember this. अगर याद नहीं भी होगा तो भी k के लिए आप ये डिराइव कर सकते हो that it is mg by L. So मुझे restoring force चाहिए, तो I am just talking about magnitude here, तो I will just write mgx by L and not negative sign, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं कि find restoring force, we are talking about magnitude of that force. तो सिंपल पेंडुलम में अगर आपको याद होगा हम लोगों ने डिराइव किया था रिस्टोरिंग फोर्सेस mg sin थीटा विद नेगेटिव साइन. हमने भी बोला था दैट sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा बिकॉज एंगल इज स्मॉल, और थीटा x by L आया था, तो mg x by L आया था. डू वी नो मास? यस. डू वी नो g? यस. g की वैल्यू आप 9.8 या 10 भी डाल सकते हो. डू वी नो x? यस, 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. डू वी नो कैपिटल L? कैपिटल L हमारे पास 1 मीटर है, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 9.8, 15 इंटू 9.8 इंटू 10 पर माइनस 4. ओके, तो इट इज लाइक 15 और 9.8 अगर मैं करूँगा तो 148 पॉइंट समथिंग आएगा. टू बी प्रिसाइज, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर. इट इज गोइंग टू बी 148 बस. इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट. 9.8 इंटू 3 भी कर लिया तो इट इज 29.4 इंटू 5 कर लिया तो इट इज 148. So it is 148 actually. 147. So 147 into 10 power minus 4 Newton आ गया. That means 1.47 into 10 power minus 2 Newton. Simple. The question was extremely simple. You just have to remember formulas. Okay. Let's go and solve next question. Find the change in length of a second pendulum if the acceleration due to gravity changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second. ये तो बहुत easy question है. Given G1 is 9.75 meter per second square and G2 is 9.8 meter per second square. We are supposed to find out change in length of second pendulum. So L2 minus L1
निकालना पड़ेगा, या फिर L1 माइनस L2 डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। L1 ग्रेटर है, L2 ग्रेटर है, उस पर डिपेंड करेगा फॉर्मूला। तो अगर आपको याद होगा लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, सो यू शुड नो व्हाट वाज लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। तो अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है पेंडुलम में, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, तो हमने लिखा था 1 इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सिंप्लीफाई करके हमको मिला था L लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एज g बाय पाई स्क्वायर, राइट। g बाय पाई स्क्वायर मिला था। आपको बोला है फाइंड द चेंज इन लेंथ, right? So you already know from here that Ls is proportional to G. No? So it is very simple. You just have to put values of G, find L1 and L2 and then calculate. That's it. Anyways, so as you can see, what we can do is we can find out L1 and we should know which one is greater. So just find out L1. L1 में आप G1 by pi square डालोगे, that is 9.75 upon pi square, or L2 will be G2 by pi square, that will be equal to 9.8 by pi square, right? Therefore delta L, that is change in length, is L2 minus L1. So 9.8 by pi square minus 9.75 by pi square, so that is 1 by pi square common, 9.8 minus 9.75, and that turns out to be 0.05 upon pi square. और एक याद रखना कि 1 by pi square is roughly 10, approximately 10 approximately, तो 0.005 आ जाएगा, क्योंकि 10 ऊपर जाके और एक 10 पर माइनस हो जाएगा, तो चेंज इन लेंथ इज 0.005 मीटर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एज आई वाज टेलिंग यू, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन is the kinetic energy of a particle performing a system of amplitude 3 times of its potential energy? This is very simple. आपको एम्पलीट्यूड दिया है 8 सेंटीमीटर, which is 8 into 10 power minus 2 मीटर, और एक चीज दी है आपको, kinetic energy is 3 times of potential energy. आपको याद होना चाहिए kinetic energy of a particle performing SHM is half, if you remember, K A square minus X square, if you remember correctly, and potential energy is 3 times half kx square. इतना तो पता होना चाहिए। तो this thing I will explore while solving this question, solution section में करेंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए that you should know formula of kinetic energy and potential energy correctly. अगर नहीं याद होगा तो doesn't matter, I'll tell you how do you remember these things, and you are supposed to find out at what distance from the mean position. So you are supposed to find out x value and formulas. Okay, just to point it down for you, अगर याद नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और आपको वी पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वी आता है ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि वी आर स्क्वायरिंग इट, तो ये आपका जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी याद होना चाहिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी आता है, that is half kx square, right? So now we can start solving this. So according to the given condition, ke is equal to 3 pe कौन से पोजीशन पे होगा ऐसा आपको पूछा गया है। Okay, so this is like ke is half k a square minus x square and 3 times of half kx square, तो half के तो गया, तो a square minus x square is 3x square, therefore 3x square plus x square is equal to a square, so x is equal to
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, है ना। तो x इज इक्वल टू a बाई 2, तो a बाई 2 इज 8 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जस्ट आपको काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए था, दैट्स इट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so according to this question, a particle performing linear SHM of period 2 pi seconds. So you have been given time period 2 pi seconds. इसका मतलब ये भी होता है कि ओमेगा की वैल्यू 1 है। तो write down letter about the mean position, about the mean position मतलब आपको x equal to a sin capital A sin omega t यूज करना है। It is observed to have a speed of b root 3 meter per second. Okay, if the particle is moving away from O at that instant, find the time required to travel a further distance b. So time required to travel further distance b हम निकाल लेंगे। Formulas I will not mention it here, will directly go for solution. मैं आपको फिर भी एक सिनेरियो बता देता हूँ। Let us say ये मेन पोजीशन है O, particle is somewhere here, okay, क्योंकि उन्होंने बोला है। तो when at a distance b, मतलब ये डिस्टेंस b है, x इक्वल टू v है, इट इज मूविंग अवे, अवे मतलब मीन से दूर जा रहा है। तो एक्सप्लोरिंग दिस फैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है, हम लोग को वेलोसिटी भी दिया है। सो वी नो दैट वेलोसिटी v इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ऑल्सो हमको ओमेगा मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा कैसे निकालोगे, बट t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t, और t की वैल्यू 2 पाई दी है, तो हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 1, राइट। एंड और क्या बताया है, एट x इक्वल टू b, उन्होंने बोला है व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ b, एट अ डिस्टेंस ऑफ b वेलोसिटी कितना है b रूट 3, v इज इक्वल टू b रूट 3। तो ये दो चीजें, तीन वैल्यूज आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो v इज b रूट 3, ओमेगा इज 1, a स्क्वायर माइनस x की जगह पे b स्क्वायर। तो व्हेन आई सॉल्व दिस, तो स्क्वायरिंग 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2b। मतलब बेसिकली मुझे एम्पलीट्यूड मिल गया 2b, दिस इज व्हाट वी ऑब्टेन, एम्पलीट्यूड आ गया 2b। इसका मतलब ये होता है कि हाफ एम्पलीट्यूड पे है, ये हाफ एम्पलीट्यूड पे है, क्योंकि x इक्वल टू b पे है और एम्पलीट्यूड 2b है, ये इंपॉर्टेंट है, right? That means the particle is at half the amplitude, right? Therefore, when v is equal to b root 3, particle is at x equal to b, that is 2b by 2, that is half the amplitude, that is half the amplitude। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि टाइम निकालने के लिए आपको लगने वाला है ये, तो इतना पता होना चाहिए। देन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। देन वी नो दैट, हमको क्या पता है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो x की जगह पे b हमको डाल ही सकते हैं ना, हमने बोला ही है, क्योंकि b डिस्टेंस कवर किया है उसने। तो b और a मतलब 2b sin ओमेगा t, b कैंसल, तो sin ओमेगा t आ गया हाफ, मतलब ओमेगा t आपका आ गया पाई बाई 6, पाई बाई 6, मतलब t इज इक्वल टू पाई बाई 6 सिंस ओमेगा इज 1, राइट। तो
जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम देता हूँ, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है पी पॉइंट। जब वो पर्टिकुलर पी पॉइंट पे था तब टाइम था π/6, टाइम था π/6, देयरफॉर p is equal to π/6 when x is equal to b। हाफ एम्पलीट्यूड पे जब था x इक्वल टू b पे था तब टाइम कितना लगा, π/6 सेकेंड्स। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस b। और b पे आने के लिए, मतलब कहाँ पे आने के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के लिए, है ना। b + b टू b ऑलरेडी हाफ एम्पलीट्यूड पे है, फर्दर डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है, मतलब उसको टाइम कितना लगने वाला है वो देखते हैं। सो फर्दर डिस्टेंस, फर्दर टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल a further distance b is, कैसे निकालोगे, t डैश बोल देता हूँ उसको मैं, t/4 माइनस t, ऐसा क्यों। बेसिक्स अगर आपको पता होगा, बेसिक्स मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, अगर आपको याद होगा, टाइम पीरियड बाय 4, है ना। मीन से राइट एक्सट्रीम t/4, फिर राइट एक्सट्रीम से वापस मीन t/4, फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम t/4 और लेफ्ट एक्सट्रीम से वापस मीन पे t/4, तो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T होता है। इतना अगर समझा होगा तो t/4 माइनस t क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है मेन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम तक t/4 लगता है। माइनस टी इसलिए किया क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी पी पे है, अब सिर्फ पी से सी जाना है, मतलब हाफ एम्पलीट्यूड पार्टिकल कवर कर चुका है, और वो हाफ एम्पलीट्यूड कवर करने के लिए कितना टाइम लगा था, π/6। तो मैं t/4 में से π/6 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाके मुझे टाइम मिलेगा टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी, मतलब नेक्स्ट बी, फर्दर बी डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो t पता है आपको 2π/4 माइनस ये π/6 है, तो π/2 माइनस π/6 मतलब π/3 आएगा, और π/3 सेकेंड आंसर में है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हमें टाइम पीरियड 2 से 2π सेकेंड दिया, मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई, x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, और बोला है कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन से b डिस्टेंस पे है तब वेलोसिटी b√3 है। हमने ये सिर्फ b के इसमें यूज कर लिया इक्वेशन में, और हमको मिल गया एम्पलीट्यूड प्लस 2b एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब जब वेलोसिटी b√3 था तब पार्टिकल हाफ एम्पलीट्यूड पे था, क्योंकि b पे था और एम्पलीट्यूड 2b है, तो हाफ एम्पलीट्यूड पे था, राइट, गुड। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t यूज किया मैंने, x की वैल्यू b है, a की वैल्यू 2b है, तो मुझे ओमेगा t मिल गया π/6, ओमेगा ऑलरेडी 1 वैल्यू है, तो t की वैल्यू आ गई π/6। तो पार्टिकल को ऑलरेडी मीन से उस p पोजीशन तक आने के लिए, मतलब b डिस्टेंस कवर करने के लिए π/6 सेकंड लगेंगे। अब अगले b के लिए कितना लगेगा, तो मैंने क्या, हम लोगों ने क्या यूज किया कि मीन से एक्सट्रीम तक t/4 टाइम, लेकिन ऑलरेडी पार्टिकल हाफ डिस्टेंस मतलब b कवर कर चुका है, उसको एम्पलीट्यूड कवर करना है, वो ऑलरेडी हाफ एम्पलीट्यूड कवर कर चुका है, तो t/4 माइनस t करूंगा, तो दैट्स इट, देन यू गेट π/3 seconds. Okay, so next question. The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light string is t. When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, then time period is 2t. Compare the masses m1 and m2. अच्छा, तो अगर आपको याद होगा formula for time period, if you remember, 2π √m/k, ये कैसे आया था, ये ऐसे आया था that
time period is 2 pi by omega. Omega is under root of k by m. So this is 2 pi under root of m by k. मतलब time period is proportional to root of m in short, right? सब पहले क्या हुआ था? First case t1 is proportional to root of m1. Second case t2 is proportional to m1 plus m2. क्यों? क्योंकि पहले मास सिर्फ m1 था, बाद में एक और मास अटैच कर दिया m2 पहली बॉडी को, और अब दोनों साथ में ऑसिलेट हो रहे हैं इसलिए, राइट? गुड. एंड आई आर सपोज टू फाइंड रेशियो ऑफ m1 by m2, राइट? तो मैं कर दूंगा t1 by t2, दैट इज अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, बट गिवन t1 is t and t2 is 2t, therefore t upon 2t is equal to under root of m1 upon m1 plus m2. ये आ गया आपका हाफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 upon m1 plus m2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 1/4 इक्वल टू m1 upon m1 plus m2. सिंपल है ये बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको. m1 plus m2 is equal to 4 times of m1, तो 4m1 minus m1 is 3m1 equal to m2, so m1 by m2 is 1/3. Simple, extremely simple. You just have to explore the fact that time period is proportional to under root of mass. Okay, let's move to next question now. The displacement of an oscillating particle is given by x equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b and omega are constants. Prove that the particle performs simple harmonic motion, linear simple harmonic motion with amplitude a equal to under root of a square plus b square. ये important है. Why? Because not always you will have x equal to a sin omega t या फिर x equal to a cos omega t. कभी कभी x equal to a sin omega t plus b cos omega t अगर आ गया तो it is also a simple harmonic motion. You should know that with amplitude a equal to under root of a square plus b square. Yeah, so you should know. All right, तो actually सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना इट इज वेरी सिंपल टास्क, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन. उन्होंने बोला है प्रूव दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है सब कब बोलते हैं? जब एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है. तो पहले तो एक्स हमारे पास है a sin omega t plus b cos omega t, राइट? गुड. तो हमको पता है वेलोसिटी कैसे आता है, v is dx by dt. तो डेरिवेटिव लेते जाओगे तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव आपको मिलेगा वेलोसिटी, दैट इज d dt of a omega t plus b cos omega t, that is a as it is sin omega t का डेरिवेटिव cos omega t with omega, क्योंकि ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव होता है बाद में, राइट? देन b cos omega t का डेरिवेटिव माइनस sin omega t with omega हियर, तो ये मिल गया वेलोसिटी आपको. फिर आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है वो आता है dv by dt. सो यू नो एक्सेलरेशन a is nothing but dv by dt and that is equal to the derivative of a omega cos omega t minus b omega sin omega t. फिर तुम जब पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो a ओमेगा कांस्टेंट बाहर रखोगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा और ओमेगा टी का वापस डेरिवेटिव लोगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड टर्म के लिए भी वैसा, b ओमेगा बाहर रखोगे, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी आएगा इनटू ओमेगा एक्स्ट्रा और बीच में नेगेटिव साइन था. तो तुम ये एक्सेलरेशन है, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ACC, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a ऑलरेडी यूज किया गया है तो मैं ACC लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन के लिए. तो मैं इसमें से माइनस
ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, मुझे मिलेगा a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, मतलब एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि a sin ओमेगा टी b cos ओमेगा टी ये एक्सेलरेशन था। Therefore the motion is simple harmonic motion, is linear simple harmonic motion। ये तो प्रूव हो गया। अभी एम्पलीट्यूड प्रूव करना है, मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। let a is equal to capital A which is resultant amplitude sin omega t। ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉपरली, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं, हमको क्वेश्चन में दिया है a cos ओमेगा टी b sin ओमेगा टी, राइट। तो मैं a को मान लूंगा sin phi बेटर, क्योंकि रिजल्टेंट, ओके एनीवेज वेयर phi इज फेज एंगल, a sin phi, और b को मान लूंगा मैं लेट अस से a cos phi, वेयर a इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। याद रखना ये जो मोशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, अगर ये सिंपल हार्मोनिक है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एम्पलीट्यूड होगा, और वो एम्पलीट्यूड है कैपिटल A। तो मैंने लिखा a इक्वल टू a sin phi और b इक्वल टू a cos phi, इतना ही लिखा है हमने, we have done nothing else। अब क्या कर सकता हूँ मैं, राइट। तो दो चीजें हैं, व्हाट टू थिंग्स। पहला, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है जस्ट बाय डूइंग एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूव करके। और एक तरीका भी है, दैट थिंग आई डोंट वांट टू डू, और करना चाहो तो तुम कर सकते हो, लेट अस डू इट हियर। तो दूसरा है कि अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ ऐसा, सो पुटिंग 2 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो x आपको मिल जाएगा, a की जगह पे आपने डाल दिया a sin phi, ओके। हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, a sin ओमेगा टी ना, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो आई हैव टू पुट अ cos here and a sin here, that's it, that is the only change। क्यों, वो समझाता हूँ मैं आगे जाके। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, लेट मी जस्ट रेक्टिफाई हियर ऑल थिंग्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट वी नीड टू जस्ट मेक श्योर दैट वी आर डूइंग इट इन अ करेक्ट नोट, और दैट विल बी करेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, मैं ट्रिक बताता हूँ कि हाउ डू यू रिमेम्बर, कि क्या करना है एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है ना, तो हमको a को लिखना पड़ेगा कैपिटल A cos phi, सिंपल, ओके। और b को लिखना पड़ेगा कैपिटल A sin phi। क्यों, क्योंकि मुझे वहाँ पे sin A cos b प्लस cos A sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए। तो इक्वेशन 2, so from 1 and 2 what we can do is x is equal to a is a cos phi and sin omega t, b is a sin phi और cos omega t वहाँ पे था, तो मैं a कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा sin omega t cos phi प्लस cos omega t sin phi। मतलब मुझे क्या मिल गया, मतलब मुझे ये मिल गया sin of omega t प्लस phi, sin a cos b प्लस cos a sin b is sin of a प्लस b। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi आ गया, इसका मतलब ये मोशन SHM है, और एक बार प्रूव हो गया, पहले एक बार हुआ अभी वापस हो गया। अब सिर्फ हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड a, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एम्पलीट्यूड a फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज दिस, हम लोग ये a cos phi और a sin phi को स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग,
ए कॉस फाई एंड ए साइन फाई, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ए कॉस फाई था स्मॉल ए, उसका स्क्वायर, ए साइन फाई था स्मॉल बी, उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज 1, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए आ गया आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना ही है। x इक्वल टू ए sin ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है विद एम्पलीट्यूड a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना प्रूव करना था आपको। कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक कब होता है, जब एक्सीलरेशन ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तब। तो हमारे पास x है, हमने डेरिवेटिव ले लिया तो v मिल गया, उसका डेरिवेटिव ले लिया तो एक्सीलरेशन मिल गया। अब डेरिवेटिव की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी, आपको आना चाहिए। ओके, नो वन कैन डू इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है, ये प्रूव हो गया, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू ए sin ओमेगा टी प्लस बी cos ओमेगा टी, वहाँ पे a मैंने डाला a cos फाई और b मैंने सब्स्टिट्यूट किया a sin फाई, राइट। तो वापस एक बार प्रूव हो गया क्योंकि हमने सिंप्लीफाई किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो वापस प्रूव हो गया x इक्वल टू ए sin ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। फिर हमने ये a इक्वल टू ए cos फाई और b इक्वल टू a sin फाई जो लिया है, उसको सिर्फ स्क्वायर एंड ऐड किया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो हमको मिल गया एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड, डन, सिंपल।